نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ویلکم ٹو پریکٹس گرامر کلاس بائی نور ہدایت. آپ سب کو قرآنک بیسک گرامر کورس کی پریکٹس کلاس لیکچر 12 میں خوش آمدید ہے. مرکبات ہم نے سٹارٹ کیے ہیں. مرکبات ناقص مرکبے جاری ہم نے لیکچر 11 میں سٹارٹ کیا تھا. آج اسی کے سلسلے میں پارٹ 2 ہے اور اس کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے جی. مرکبے جاری کیا ہے؟ حرف جر اور اسم مل کر مرکبے جاری بناتے ہیں. پھر ہم نے اس میں مختلف اسماء دیکھے تھے کہ حرف جر کے بعد آنے والا اسم کون کون سا ہو سکتا ہے. ہم نے وہ ڈیٹیل کر دیکھی. اس کے بعد اس میں کون کون سے اسماء آ سکتے ہیں. معرف باللام اسم، اسم علم، نکرہ اسم، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم ضمیر آ سکتی ہے. مین ٹاپک ہمارا لیکچر 12 کا تھا کہ حرف جر کا ضمائر کے ساتھ استعمال، پروناؤنس کے ساتھ استعمال. اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ حرف جر کا اسماء استفہام کے ساتھ استعمال، جنہیں انٹروگیٹو پروناؤنس بھی کہتے ہیں، یعنی جنہیں ایسے اسماء جنہیں سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ گروپنگ ہم نے کل سیکھی. بہت سے گرامر کے ایسے استاد ہیں جو بہت سارا بہترین کام کر رہے ہیں اپنی اس فیلڈ میں. تو انہیں استادوں میں سے ایک استاد سے میں نے یہ سیکھا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ حرف جر کی گروپنگ کیسے ہوئی ہے. گروپ 1 الا، الا، فی، پی. یہ 4 حرف جر ایسے ہیں کہ جب یہ ضمائر کے ساتھ آتے ہیں تو اس کو مجرور کرتے ہیں، لیکن مجرور ہونے کا اثر صرف غائب کے صیغوں پر نظر آتا ہے، سوائے واحد مؤنث غائب کے صیغے کے. ٹھیک ہے. غائب کے 6 صیغے ہیں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ہیا کے علاوہ باقی 5 صیغوں پر ہمیں یہ اثر نظر آئے گا. ٹھیک. اس کے علاوہ یہ 4 حرف جر آپ کو اسم کے ساتھ بھی ملیں گے اور اسم کو مجرور کریں گے اور وہاں ہمیں افیکٹ نظر آئے گا، وہاں پہ ان کا ایکشن نظر آئے گا. گروپ 2 من، ان، لی یا لام زبر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اس کو. یہ حرف جر آپ کو جب ضمائر کے ساتھ آئیں گے تو آپ ان کا اس پر ایکشن تو نظر نہیں آئے گا ہمیں، ہاں، لیکن یہ اس تمام جو ضمائر کا ٹیبل ہے اس کو مجرور کر دیں گے. ٹھیک ہے. ان کا اثر کیا ہے؟ حرف جر نے کیا کرنا ہے؟ یہ مجرور کرتا ہے اسم کو. تو یہ جب بھی ضمائر کے ساتھ آئیں گے یہ انہیں بھی مجرور کریں گے، اور یہ اس کے علاوہ یہ اسم کے ساتھ جب آئیں گے یہ انہیں بھی مجرور کریں گے، اور اسم مجرور جب ہوگا تو ہمیں وہ نظر آئے گا کہ یہ اسم حالت جر میں گیا ہوا ہے. ٹھیک. گروپ 3 واو، قسمیہ، کاف حرف جر، تا قسمیہ اور حتی. یہ جو حروف جر ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو اسماء کے ساتھ ملیں گے، یہ ضمائر کے ساتھ نہیں آتے. ٹھیک ہے. یہ اسماء کے ساتھ آپ کو ملیں گے، یہ ضمائر کے ساتھ نہیں آتے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اسم ضمیر یا ضمائر جنہیں کہا جاتا ہے پروناؤن، یہ کیا ہے؟ جو لفظ کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں یا ضمائر کہا جاتا ہے. اس کی 2 اقسام ہیں: ضمیر منفصل یا منفصلہ، ڈیٹیچڈ پروناؤن یعنی الگ الگ. ٹھیک ہے. یہ منفصل جو ہے الگ سے نکلا ہے، اور ضمیر متصل
अटैच प्रोनाउन यानी ये मुत्तसिल हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ये चिपक कर आते हैं किसी भी इसम के साथ। ठीक है जी। अब मुनफसिल कौन से हैं? ये वो चार्ट देखिए, ये वो चार्ट है जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, जिन्हें हमने कहा था कि ये हालत रफा के ज़माइर हैं। तो आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं कि ये असल में ज़मीर मुनफसिल का चार्ट है। और ये चार्ट आप लोग याद भी कर चुके हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुना, ये गायब के हैं। हाजिर के अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। मुतकल्लिम के अना नहनु। ठीक है। अब ज़मीर मुत्तसिल क्या है असल में, उसको देखिए। ये है ज़मीर मुत्तसिल का चार्ट। ठीक है। ये हालत नस्ब और जर के ज़माइर हैं। जब भी इनसे पीछे कोई ऐसा इसम आएगा जो इनको हालत जर में लेके जाएगा, ज़मीर के साथ जब भी हरफ जर आएगा, तो आपको जो ज़मीर है वो इस शक्ल में मिलेगी। ठीक। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? एक्चुअली में ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये इस चीज को इस चीज की इंडिकेशन है कि इसके साथ यहाँ पे कोई इसम जुड़ेगा या इधर यहाँ पर हरफ जर जुड़ेगा। अच्छा, जो ये ज़मीर जो ये वाले ज़माइर हैं अटैच प्रोनाउन, इसको याद रखिएगा। ये अस्मा के साथ भी आपको इस हालत में मिलेंगे, और ये आपको हरफ जर के साथ भी इसी कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं। गायब के मुजक्कर के लिए अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल हु हुमा हुम। और गायब के हा हुमा हुन्ना। हाजिर मुजक्कर के लिए का कुमा कुम, मोनस के लिए की कुमा कुन्ना। मुतकल्लिम के मुजक्कर और मोनस के लिए सेम होते हैं, या स्लैश नी। अब या और नी क्या है? या आपको इसम के साथ मिलेगा, और नी जो ये ज़मीर मुत्तसिल है, ये आपको फेल के साथ लगी हुई मिलेगी। जब आगे इंशाल्लाह फेल की स्टडी करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद उधर नजर आएगी और आपको याद भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जमा मुतकल्लिम के लिए ना, नाहनु से ना। अच्छा, ये आपके पास अटैच प्रोनाउन का ज़मीर मुत्तसिल का चार्ट है, जिसे हालत नस्ब और जर में कहा जाता है कि इसकी अराबी हालत नस्ब और जर की ऐसे लिखी जाएगी ज़माइर की। इन चार्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। हालत रफा का आप लोग याद कर चुकी हैं, हालत नस्ब और जर का आपको इंशाल्लाह इजीली याद हो जाएगा। कल हमने प्रैक्टिस की थी हरफ जर की चार्ट के साथ, ठीक है, इन्हीं अटैच प्रोनाउन के चार्ट के साथ। तो आज हम इसको मजीद आके देखते हैं कि कुछ मैंने हरफ जर आपको लगा कर उस वक्त दिखा दिए थे। तो आज हम देखते हैं कि आज कौन से। आज हमने हरफ जर इला लिया, ये ग्रुप 1 में से है, जो कि गायब के ज़माइर पर उसको मजरूर करेगा सिवाय या के ज़मीर के। ठीक है, यानी वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर के। मैं इसे सिर्फ आपको शो कर देती हूँ, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हरफ जर इला, इलैहि, इलैहिमा, इलैहि, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना। यहाँ देखिए इलैहि, हु था ही हो गया, हुमा था हिमा हो गया, हुम था हिम हो गया। इसी तरह हा तो सेम रहा, हमने कहा यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इलैहिमा, हुमा से फिर इधर हिमा हो गया, और हुन्ना था इलैहिन्ना हो गया। आगे इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया। अब यहाँ देखिए, या पर आपको तशदीद मिल रही है। एक तो इला हरफ जर की यहाँ पर या आ रही है, और दूसरी या मुतकल्लिम की या थी, जो या ज़मीर। इलैना, इलैना, इलैही, उसकी तरफ। ठीक। एक का मैंने तर्जुमा कर दिया, बाकी का तर्जुमा आप चार्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगला हरफ जर है फी। अब फी के साथ देखते हैं कैसे चार्ट बनेगा। फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फी, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना, फी या, फीना, फीना। ठीक। और इसके साथ तर्जुमा कैसे होगा? फी ही, उसमें। ठीक है। हरफ जर बा, इसको देख लेते हैं। बी ही, बी हिमा, बी हिम, बी हा, बी हिमा, बी हिन्ना। अब देखिए यहाँ पर भी
कैसे चेंजेस आई हैं सारी आपके सामने। उन्होंने जेर ले ली है गायब के ज़माने में सिवाय वाहिद मुअन्नस के, बाकी हाजिर और मुतकल्लिम के सेम चलेंगे। बी का, बी कुमा, बी कुम, बी की, बी कुमा, बी कुन्ना, बी बी और बी ना और बी बिना और बिना। ठीक है, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, बी ही उसके साथ। ठीक हो गया। अब ये ग्रुप 1 के थे, जो बकाया के 3 रह गए थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और लास्ट ग्रुप 2 का जो एक रह गया था, हरफ जार अन। तो हमने पढ़ा था ग्रुप 2 के जब हरफ जार आते हैं जमायर के साथ, तो हमें वैसे तो एक्शन नहीं नजर आता, हाँ, लेकिन होते हालत जर में ही है, क्योंकि हमने उनके साथ हालत जर के जमायर लगाए हैं। अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, अंकुमा, अंकुन, अंकी, अंकुमा, अंकुन्ना। सॉरी, इधर आना था, अनी। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, मैं इसको लिख देता है। अन्ना और अन्ना, ठीक है, मुतकल्लिम के लिए भी अन्ना, और अ, मुसन्ना के लिए भी अन्ना, और जमा मुतकल्लिम के लिए भी अन्ना आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ। आपको क्लास में भी मैं आपको इसको शेयर कर दूंगी कि इसकी सही शक्ल कैसे आएगी आपके पास। हम्म, इसको यहाँ से काट देती, अन्नी लिखिएगा इसको। ठीक है, अन्नी। ठीक, इसको देख लीजिएगा एक दफा आप लोग प्लीज। आगे देखते हैं इसका, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। अन, उससे। लेकिन जब ये हमें अहादीस में मिलता है, तो हम वहां पर एहतरामन कहते हैं उनसे। ठीक हो गया जी। अब हम आगे देखते हैं। और हरफे जर का अस्मा इस्तिफाम के साथ इस्तेमाल। ये अस्मा इस्तिफाम है आपके सामने, मा, मन, मता, आईना। अब मैंने कहा क्योंकि ये अस्मा है, तो इनका कोई ना कोई जुमले में स्टेटस होना चाहिए। इसम अपना स्टेटस रखता है जुमले में कोई ना कोई। तो जो माँ है ये मुब्तदा बनकर आता है, मन भी आपको मुब्तदा बनकर मिलेगा, मता भी आपको मुब्तदा बनकर मिलेगा, जबकि आईना जुमले में खबर बनकर आता है। अब इनकी ट्रांसलेशन देख लें। माँ की ट्रांसलेशन है क्या। माँ का तर्जुमा आप करेंगी क्या। मन कौन, मता कब, आईना कहाँ। ठीक, ये हमारा कल का छोटा सा एक रीकैप था। अब सब पार्टिसिपेशन के लिए आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले कौन आएंगी, साइमा सुफियान, प्लीज चेक योर माइक। बाकी सभी हैंड रेज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साइमा जी, आपके सामने जो भी जुमला आएगा आपने उसको पहले पूरा पढ़ना है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है उसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है। जी जी कीजिए। जी जी। फिल किताबी। जी, फी क्या है। फी जो है हर्फ जर है ये। और अल किताब और है। अल किताब मुअर्रफ बिल लाम इसमें है। जी, आप साकिन नहीं करेंगे, ठीक है। हम अभी स्टडी अच्छा, कर फिल रहे हैं तो किताबी। उसके साथ जी, फिल। अल किताबी जो है। जी, ठीक हो गया जी, जी। अल किताबी। अब मुझे बताइए अल किताबी की जो है अराबी हालत क्या है। ये वो हालत जर में है ये। शाबाश, क्यों हालत जर में है, हमारे पास क्या रीजन है साइमा। जी जी, ये फी जो है ये हुरूफ जर है ना, इसकी वजह से ये भी मत, हालत जर में है। जी, ये ठीक। मजरूर कर दिया उसमें से। इसने जी मजबूर कर दिए, ठीक हो गया जी। अब आप मुझे बता सकती हैं किताबी का अदद क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है। जी, वाहिद है कर, किताब में। हाँ एक जी, आप इसकी ट्रांसलेशन कर दें। किताब में। किताब में। एक और देखिए, जी, इलैना। इला क्या है यहाँ पर। इला, इला हर्फ जर है, और ना जो है ये जमीर मुत्तसिला है। शाबाश, मुत्तसिल है। और ये कौन से सीगे की जमीर है।
ये मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम या मुसन्ना मुतकल्लिम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब इसकी आप जी, ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? हमारी तरफ। शाबाश। एक और देखिए। फी जुलुमातिन, जी। पी क्या है? फी हर्फ जर, जी। जुलुमातिन जो है ये इसमें नकरा है बची। जी बिल्कुल। देखे ना, दो तनवीन आपको जी मिल रही है ना। जी जी जी। नकरा इसम हाँ, आ रहा है। अब इसकी हालत क्या है, इसकी अराबी हालत क्या है साइमा? इसकी अराबी हालत जो है ये हालत जर में है, फी की वजह से ये मजरूर हो गई। एक्सीलेंट। तो जुल्मातिन की हालत जार है, तो इसकी हालत रफा कैसे लिखते हैं? जुलुमातुन दो पेश आ जाएगी। शाबाश। और मुझे ये बता दिए कि वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? ये जमा है बची, शाब। जुलुमातिन। हाँ जी। आतिन तो की साउंड जमा में अलिफ आती है जी। तारी है ना आखिर पे, तो ये हमें बता रही है जी कि जमा है। जी। अच्छा, ये मुजक्कर है या मोनस? कौन सा सही कौन सा इसके जिन्स है? इसकी जींस बजी मोनस है, मोनस समाई नहीं तो नहीं आ रहा। बस मोनस है नहीं ना? नहीं, आने मोनस है जी, हाँ आतिन नहीं तो नहीं, मोनस में आती है ठीक जी। है। जी आतुन अलामती मोनस हाँ में है, आतिन। तो खुल के जमा जी में जी हो जाए। अलामती। चलें, तर्जमा कर जी, दीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए। अंधेरों में या तारीकियों में। जी। एक और कीजिए आप। शाबाश। अलल अरशी, हम्म। अला हरफ जर, हम्म। अल अरशी जो है ये मोरब बिल्लाम इसम है, ये हल्फ जर में ये भी चला गया अला की वजह से ठीक है। और ये मजरूर हो कौन गया। सा मुरक्कब बन रहा है साइमा? ये मुरक्कब जारी है ना, हरफ जर है तो शाबाश। इस वजह अब से। तर्जुमा कर दें। जी अर्श पर। अर्श पर। ठीक हो गया जी। जी चलो, एक और कर दें मुझे आप। जी। मीनस समाई, जी। मिन हरफ जर, हम्म। अस्समाई, अस्समाई जो है हम्म। अलिफ लाम है, ये मोरब बिल्लाम इसम है और हालत जर में ये भी है, मिन जी। की वजह से मजरूर हो गया। जी। जी और क्या तर्जुमा करेंगी? हाँ, आसमान से। आसमान से। ठीक हो गया। बारकल्लाहु फीकी साइमा जी, एक्सीलेंट। जज़ाकल्लाहु, जज़ाकल्लाहु यहाँ पे खैर अली कसीर। प्लीज आ जाए, चेक करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। फी क़ल्बिही, जी। इसमें फी जो है हर्फ जर, जी। क़ल्बिही मजरूर। शाबाश। नहीं, कल्बी, हम सिर्फ कल्बी तक देखेंगे। कल्बी क्या है? अच्छा क़ल्बी मजरूर है। जी मजरूर है। अच्छा, अभी मैंने आपको जब पीछे एक बात बताई थी कि जो जमीर मुत्तसिल है ये आपको अस्मा के साथ भी जुड़ी हुई मिलेगी, तो वहां पर भी ये हालत जर में ही कहलाई जाएगी। ठीक है, जैसे ये कल्बी ही के साथ आपको जमीर मिल रही है ना, ये हालत जी जर की जमीर है इधर भी। ठीक है, इसम के साथ जी जो भी आपको जमीर मिलेगी उसकी आराबी हालत भी मजरूर होगी। ठीक। मजरूर। लेकिन ये अभी जी, हमारा बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक इसका ही होगा, वहां हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो फी कल्बी ही, इसका तर्जुमा करें। दिल में, दिल में। नहीं, अगर हम चले फी कल्बी दिल में, फी कल्बी ही उसके दिल में। उसके हम्म। उसके दिल में। जी ठीक है। बाकी डिटेल हम इंशाल्लाह इसकी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो अस्मा के साथ भी आपको जमायर मिलेंगे वो हालत जर ही उनकी होगी। ठीक है, वो भी मजरूर होंगे। चलें, ये आगे देखिए। इला जहन्नमा, जी। इला हर्फ जर, जी। जहन्नमा मजरूर। जी शाबाश। जहन्नमा पर ये मुझे नजर आ रही है, आप कह रही है मजरूर है राफिया। ये दो ही हालत में होता है और गैर मुनसरिफ अस्मा है, तो ये नसब और जर में हम्म। एक ही हालत में रहता है ये, मतलब सिर्फ इसकी दो ही शाबाश। हालतें होती है। हम्म। ये कौन से अस्मा कहलाते हैं, कुछ थोड़ा सा याद है आपको? ये गैर मुनसरिफ अस्मा है। शाबाश। ये गैर मुनसरिफ अस्मा है जो तीन एराबी हालतों में सिर्फ दो एराबी दो ही हालतों में मिलते हैं। तो इसकी हालत रफा कैसे होती है? जहन्नमू, एक्सीलेंट। अब तर्जुमा कीजिए। जहन्नम की तरफ, दोजख की तरफ। जी। ठीक है। नहीं, हाँ तो हम्म। जहन्नम भी कह जी जी। सकती है। ठीक है, जहन्नम के। अगला देखिए। अलन निसाई, हम्म। अला हर्फ जर,
जी, اور نسائی مجرور حالت میں ہے علی النسائی عورتوں پر. عورتوں پر. اور جو النسائی ہے یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، اس کا عدد بتائیں. یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ بھی بتا دیں. مؤنث ہے. ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کی واحد یاد ہے آپ کو؟ امراتن شاباش، ایکسلنٹ. ترجمہ کر دیں. عورتوں پر. نیکسٹ دیکھیے، لاسٹ. علی سفرن. ہوں علی حرف جر سفرن ہوں مجرور حالت میں ہے. جی، نکرہ سمجھ. نکرہ اس میں، جی ہاں. سفر پر. ہم نے نکرہ کا ترجمہ کیسے کرنا سکتا تھا رافعہ جی؟ ایک اس میں کسی یا ایک کا اضافہ ہوگا. جی، ایک یا کسی سفر پر. ٹھیک ہے. ہاں، کسی سفر پر. جی بارک اللہ فیکی، ایکسلنٹ رافعہ جی. شہلا جی پلیز چیک یور مائک. جزاک اللہ. بائی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شہلا جی دیکھیے نیکسٹ آپ کے لیے کیا ہے. چلیں جی، پہلے آپ ویسے ہی سیم پیٹرن ہے کیجیے اس کو. لام حرف جار کم ضمیر متصل پہلے ہم مجرور. پورا پڑھیں گے شہلا جی. کیا اچھا لکھا ہے؟ لکم. یس میم. ہوں لکم جی. لام حرف جار ہوں اور کم ضمیر متصل ہوں مجرور. جی. سوری، یہ نا اوپر پیش ڈال دیجیے گا جب آپ لوگ نوٹس بنانے بیٹھیں گی. میں کچھ مسٹیک کر گئی اس کو. لکم. اچھا جی. اور یہ کم جو ہے اس کی عربی حالت کیا ہے؟ مجروری کی حالت ہے. جی. اور اس کی ٹرانسلیشن کیجیے. لکم تمہارے لیے. ایکسلنٹ. ایک اور دیکھیے. من ہما. ہوں من حرف جار ہوں ہما ضمیر متصل شاباش. مجرور. مجرور. ترجمہ کیجیے. ان دونوں میں. جی. ہما کون سی ضمیر ہے، کس کے لیے آئے گی مجھے بتا دیں گے ذرا. ہما دو کے لیے نا. ہوں ٹھیک ہے، ان دونوں سے. اچھا، اب ہمیں جب یہ ہما آ رہا ہے نا تو جب آپ کے پاس یہ کہیں بھی آپ کو جملے میں یا آیت میں ملے گا تو اس کے پیچھے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ہما مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ اگلا دیکھیے. ان حرف جار جی اسم مجرور اور ہی ضمیر متصل مجروری حالت میں. جی. ان نفسی ہی، تو اس کا جو ہے اچھا ترجمہ کیجیے. اس کے نفس ان سے، اس کے نفس سے ہوں یا اس کی جان سے. جی ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کرتے ہیں. جی لیا ہوں الا حرف جار ہوں یا ضمیر متصل مجرور. کس کے لیے آئے گی یا کس ضمیر کون کس کے واحد لیے؟ متکلم کے لیے. ایکسیلنٹ. جی. ٹرانسلیشن کیجیے. یا میری طرف. ایک اور کیجیے. الیہ جی. الا حرف جار ہی ہوں ضمیر متصل ہوں مجرور. جی. ترجمہ ترجمہ پڑھے شہلا جی. میم شو نہیں کر رہا. اب آ گیا. الیہ اس کی طرف. اس کی طرف. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکی. جی. ایکسلنٹ شہلا جی. روحی جی پلیز چیک یور مائک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روحی جی دیکھیے جلدی سے. عنی، ہوں یہ عنی مجھ سے آئے گا میم. جی. اب مجھے بتائیں اس میں ان کیا ہے ان حرف جر ہے. اور آگے یا کس لیے آ رہی ہے؟ میم یہ اٹیچ پروناؤن ہے میم. شاباش.
किस के लिए आता है? गर्दान वो जो हमने टेबल पढ़ा है उसमें किस सीगे के लिए आएगा? वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, वाहिद मोन्नस के लिए, हाजिर के, वाहिद 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 के लिए आएगा मैम। कौन से वाहिद के लिए? मुझे थोड़ा सा बताएंगी। वाहिद, मुजक्कर मुजक्कर वाहिद मुतकल्लम के लिए, ठीक है जी। अना की, जी, वाहिद अना की मुतकल्लिम। जमीर है ना, ये अना की मजबूरी, अना की जमीर की जो हालत जा रहा है वो या के साथ है, ठीक है। जी मैम। अब इसकी ट्रांसलेशन कीजिए अन्नी मुझसे। जी। एक और कीजिए, लेफ्ट साइड पे ऊपर देखिए आया। वल अस्री। शाबाश। वाओ क्या है? और ये भी हुर्फ जरी है मैम। कौन से वाला? क्या तर्जुमा है इसका? हमने वाओ पढ़ा ना, कि कौन सा वाओ है? जी वाओ कस्मिया, ठीक है। जी मैम, बहुत हंसी। और मैंने आपको बताया था कि वाओ अतफ और कस्मिया में कैसे फर्क करेंगे, याद है कुछ? मैम दोबारा कहिए। वाओ कस्मिया और वाओ आतिफा जो अतफ करता है, जिसका तर्जुमा और के जी साथ करते हैं, कैसे फर्क करेंगे? डिफरेंस कैसे देखेंगे आप कि कौन सा वाओ है? मैम अलिफ लाम की वजह से। नो नो, आपने याद रखना है कि अगर वाओ आ रहा है आपके सामने, जैसे वाल असरी, तो इसने असरी को मजरूर किया है, तो ये वाओ कस्मिया है। जो वाओ अतफ का आता जी है, जिसका तर्जुमा और के साथ किया जाता है, वो कोई इफेक्ट नहीं जी मैम। करता इसम पर, ठीक है। तो ये आपका वाओ जी कस्मिया है। तर्जुमा कीजिए इसका। नहीं पता मैम। जी। कसम है, कसम है असर जमाने, जमाने की कसम। ठीक है। जी अगला देखिए। जी। तावाही। हम्म ता जो है ये भी हुर्फ जरा ही है। किस लिए आता है? अल्लाह। ता हरफ जर भी कसम के लिए आता है, ठीक है। जी। चलो जल्दी कीजिए, तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह की कसम। लास्ट, अल्लाह की कसम। ठीक हो गया, ठीक है। देखिए, और अब मेरे साथ है हादिया, आप आ जाइए। बारकल्लाहु फीकी रूही जी, प्लीज चेक योर माइक हादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हादिया चलें जल्दी से कीजिए, ये पढ़ें तमीज़ुल्लाह पूरा। फातिमतु व आयशतु ज़ाहिबतानी मिनल मक्तबती इलल बैती। हम्म फातिमा तू व आयशा तू, ये क्या है जुमले में? ये जुमले मुब्तदा है। हाँ मुब्तदा है। जाहिबतानी, ये क्या है? ये मुसन्ना है क्या बन रहा है और जुमले में? इसकी स्टेटस क्या खबर, है? हाँ शाबाश। इसका खबर है मिनल मक्तबती, मिनल मक्तबी मुतल्लिक खबर है, क्यों कहा हमने से? क्योंकि इसमें खबर है और साथ ही खबर के साथ उसकी खबर मतलब मुतल्लिक खबर भी होगी। क्योंकि जार मजरूर का मुकाम जुमले में शिबह जुमला होकर मुतल्लिक खबर होता है जब खबर मौजूद होगी। इलल बैती, ये भी क्या है? ये भी मुतल्लिक खबर ही है। शाबाश। तर्जुमा करेंगी? मुझे इसका तर्जुमा पढ़ें थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। पढ़ें कि समझाएं। फातिमा और आयशा लाइब्रेरी से घर की तरफ जा रही हैं। ठीक है। अब मिनल मक्तबती, लाइब्रेरी से, इलल बैती, घर की तरफ, ठीक है जी। जी जी। अगला देखिए। अल तिलमिजु फिल फसली, जी। इसके अंदर अल तिलमिजु मुब्तदा है। मीजू, ये लास्ट टाइम हमारी जो पिछली स्लाइड थी लेक्चर 11 की, उसमें टाइपिंग मिस्टेक आ रहा था, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा वहां पे, ठीक है। जी, इसमें अल तिलमिजु वो है मुब्तदा, फिल हम्म, फसली खबर। ठीक है। तर्जुमा पढ़ें। शागिर्द क्लास में है। अच्छा, अब यहाँ पर जो फिल फसली है, जार मजरूर शिबू जुमला होकर कायम मकाम खबर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास असल खबर मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह इस खबर ने ले ली, ठीक। जी। अगला देखिए। हुम फी शक्किम मिन्हा, हम्म हम क्या है?
اسم ضمائر शाबाश। اور मुत्तसिल मुत्तसिल डिटैच्ड ये है मुत्तसिल, नहीं सॉरी मुनफसिल, यानी कि डिटैच्ड है। डिटैच्ड। शाबाश। फी शक्किन ये क्या है? ये है मुरक्कब जारी। शाबाश। फी क्या है? फी इसमें जर है, यानी कि हर्फ जर। शाबाश। हर्फ जर। मिनहा, मिनहा में हा क्या है? मिनहा में इसमें हमारे पास जो हा है वो है अटैच प्रोनाउन। शाबाश। इसकी अरबी हालत क्या है हा की? हा की राबी हालत है इसके रफा, मजरूर। सॉरी मजरूर, मजरूर, क्यों है ना मजरूर? पीछे देखिए क्या आ रहा है इसके। क्योंकि इसमें हर्फ जर आ रहा है इसलिए। शाबाश। तो हम मुब्तदा, फी शक्किन खबर, कायम मकाम खबर, और मिनहा को हम मुतल्लिक खबर कर लेंगे यहाँ। ठीक है, तो जी। अब आप देखिए कि इसकी तर्जमा पढ़ें। वो शक में है इससे। ठीक है, अच्छा। जी। आगे देखिए मेरे साथ, चलें आप ही कंप्लीट कीजिए, आगे बस लास्ट है थोड़ा सा, तो हम इसको याद करें। चलें, ये हमने जो अस्मा इस्तिफाम पढ़े थे, तो मैंने उनका थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म बना लिया है, हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अइना मुहम्मदुन, अइना ये क्या है नादिया? ये आईना इसमें हर्फ जर है। अइना अस्मा इस्तिफाम है, ठीक है, जी। इसम इस्तिफाम है, ठीक है, सवाल के लिए आता है। और क्या स्टेटस अभी मैंने इसका बताया था, खबर या मुब्तदा? इसका स्टेटस है ये इनका स्टेटस है मुब्तदा है। हाँ, अइना खबर, नहीं अइना सॉरी, आईना खबर है, मुब्तदा आईना नहीं खबर है, बनेगा, खबर है, ठीक है। खबर है, और आईना अब खबर है। क्योंकि जी। यहाँ पर आ रहा है अइना, तो यहाँ ये कहलाएगा खबर मुकद्दम, और मुहम्मदुन मुब्तदा मुअख्खर। ये टर्म मैंने समझाई थी ना पीछे एक लेक्चर में आप लोगों को। तो अइना खबर जी। मुकद्दम, मुहम्मदुन मुब्तदा मुअख्खर। तर्जमा पढ़ें जल्दी से। मोहम्मद कहाँ है? अब इसका जवाब देखिए। हुआ फी हुआ फिल गुरफती। हुआ क्या है? हुआ इसमें इसम ज़मायर है और इसम ज़मायर डिटैच्ड है। शाबाश। मुनफसिल, ओके। फील गुरफाती, ये इसका क्या स्टेटस है जुमले में? फिल गुरफती इसमें है ये कायम मकाम खबर है। एक्सीलेंट। नहीं तर्जमा सॉरी, पर। जी जी। ये वो कमरे में है, हाँ जी, वो देखिए मेरे कमरे पास में है। असल खबर मौजूद नहीं है कि वो कमरे में क्या जी। कर रहा है, लेकिन हमें से और इसलिए वहां पर जो जी जार मजरूर अब आया है, ये शिबह जुमला होकर कायम मकाम का स्टेटस ले लेगा। चले एक और देखें जल्दी से। वो आईना साअतु, वाह कौन सा है यहाँ पे, वाव कौन सा है? ये वाव है, इसमें वाव अतफ। शाबाश। आईना क्या आ गया? आईना इसमें आ गया खबर है। हाँ, खबर मुकद्दम। अस्सातु अस्सातु इसमें मुब्तदा है, मुब्तदा मुअख्खर, ठीक। जी। तर्जुमा पढ़ें। और घड़ी कहाँ है? अब इसका जवाब क्या है? हिया अला सरीरी। हम्म या क्या है? हिया इसम डिटैच्ड, यानी कि ज़माइर है, डिटैच्ड, जमीर डिटैच्ड मुत्तसिल। प्रोनाउन हाँ जी, ज़मीर और फिर अला सरीरी इसमें जारी है, मुरक्कब है। और स्टेटस क्या है और इसका? इसमें इसका स्टेटस है खबर है, इसमें जो कायम मकाम खबर है। शाबाश, क्योंकि असल खबर मौजूद नहीं है। अच्छा, हिया क्यों आया है मुझे बताएंगी? दोबारा रिपीट कीजिए। हिया क्यों मैं लेकर आई हूँ इधर? क्योंकि ये गैर आकिर है। अस्सातु अलामती मुअन्नस आ रहा है, ठीक है। जी। जी। तर्जुमा पढ़े। वो बेड पर है। चले एक और देखें। मिन आईना फातिमा तू। मिन आइना। मिन मिन आईना इसमें हरूफे मुरकब जारी है, क्योंकि यहाँ इसके हमने आगे मुरक्कबे जारी नहीं इसको आप कहेंगे, यहाँ पे हमने इसको इसम इस्तिफाम के साथ मिन को यूज किया ना, तो इसका तर्जुमा होगा कहाँ से, ठीक है। तो फातिमा तू जी। क्या हो गया, ये खबर मुकद्दम हो गया पूरा। तो फातिमा जी। तू, फातिमा तो मुब्तदा है, ठीक है, जार मजरूर मुब्तदा खबर मौखर मुकद्दम हो गया, और फातिमा तू मुब्तदा मुअख्खर। हो तर्जुमा गया। पढ़े। फातिमा कहाँ से है? ठीक है, अब आगे देखिए।
जवाब इसका क्या है? हिया मिनल हिंदी। हाँ जी, हिया मिनल हिंदी। तो देखिए क्या जवाब है इसका। वो हिंदुस्तान से है। चलो ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारा जो ये था ये लेक्चर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप कि आपको जो रिकैप हुआ है उससे काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। लेक्चर 12 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस को। लेक्चर 13 में इंशाल्लाह मिलेंगे और फिर इंशाल्लाह आपके साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो भी अभी मुरक्कबात नाक़िस अभी हमारे चलेंगे क्योंकि 4 मुरक्कबात नाक़िस है जिन्हें हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।